Hello folks, welcome back to my channel The Growth Chronicles with Mosam. So here we're going to talk about the part 3 of our MBA journey or of my MBA journey at IIM Lucknow. So part 1 में मैंने बोला था what was the experience like for the first 2 to 3 months, where I talked about academics, making the CV, the one pager, the famous one pager, doing case competitions, going to different clubs and working with them. So it was still the experience of the summer interview. Then in part 2, I talk about the summer internship, how it went, what was the crazy atmosphere, and how it was once in a lifetime opportunity. I'll put the link in the description below for you to go and watch. Do support me in those videos. And after you've seen this, I would recommend you to come back and watch this. So the entire objective of the series, so is it a candid chat that I want to have with my viewers? Definitely, that is true. But at the same time, I also want you to give you a realistic picture of what happens inside B School campus. Obviously, there are certain things which I don't want to say and I cannot say, but I'll give you a generalistic overview of what generally happens, what are the different phases of a B School or life in a top MBA college, right? Now, coming to part 3, which is the honeymoon phase. Well, ये वो हनीमून नहीं है कि सब एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं बैच में और हनीमून करने चले गए, जी नहीं, वैसा नहीं है. तो हनीमून फेज होता है वंस योर समर प्लेसमेंट्स आर डन टिल द टाइम यू एंड योर फर्स्ट ईयर. तो फॉर सम इट इवन एक्सटेंस, अगर उनको पीपीओ मिल गया तो ऑब्वियसली तो वो भी एक पॉइंट है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फेज. सो सडनली यू कुड सी योर ओल्ड कॉलेज लाइफ कमिंग बैक टू द फोर. मतलब एकेडमिक्स ही सिर्फ बाकी है, बाकी सीवी मेकिंग का कोई टेंशन नहीं है. क्लब कॉम्पिटिशन्स तो भाई हो चुका है, केस कॉम्पिटिशन्स भी कुछ होता नहीं है इस टाइम पे. तो अब जेन्युइन बॉन्ड्स और जेन्युइन फ्रेंडशिप्स जो फर्स्ट हाफ और फर्स्ट ईयर मतलब टिल समर्स जो एक ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स था, लाइक पीपल आर वर्किंग विथ ईच अदर टू अंडरस्टैंड ग्रुप्स किसके साथ बनाना है, बात कर रहे थे, मिंगल हो रहे थे, सो बहुत सारी चीज़ें था. Now those groups get formed and get associated. Now we talk about something which is way more important than transactions. People connect at a person level. लोग अगर बाहर जाते हैं घूमने के लिए, सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं. वैसे लखनऊ में there are good places to party, but yeah, people now go on trips. सब लोग vacations पे जा रहे थे, कई कई घर भी जा रहे थे थोड़ा टाइम के लिए. But it was the calmest atmosphere I had seen during my MBA. सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स का प्रेशर था, वो भी उतना ज़्यादा नहीं था. तो केस कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता था थोड़ा बहुत. केस कॉम्पिटिशन्स नहीं, सॉरी, रादर केस स्टडी प्रिपेयर करके आना था. थोड़ा ग्रेड्स के ऊपर फाइट था बस, और ज़्यादा कुछ नहीं था. सडनली जो प्रेशर लेवल, एक्टिविटी लेवल वॉज एट इट्स हाइट, सडनली केम डाउन बिलो द ग्राउंड. इट वॉज सच अ ह्यूज कॉन्ट्रास्ट. तो क्या ही बोल. तो उस टाइम में कुछ मेजर टेक अवेज थे कैंपसेस से कि बहुत सारे जेन्युइन रिलेशनशिप्स फॉर्म हुए, एज इन फ्रेंडशिप्स भी फॉर्म हुए, प्लस पीपल गॉट इनटू रिलेशनशिप्स if that interests you. So that was the case for me personally. I started forming my own cluster of people, or you can say the own gang. There were 3 or 4. So 2 or 3 of my best friends with whom I'm still in touch were actually, I met them during this phase. So I had this habit of going to the library and reading a lot. I used to read about a lot of stuff during that point of time. So I met them over there. I was not that great academically, but I would love to read. I would go and research stuff. I'd keep myself updated. I would work with someone if they're working on a research paper, और हमारे साथ कुछ FPM या PhD का सीनियर्स भी से उनके साथ बात करके थोड़ा इंसाइट लाना was also something that I wanted to do. But at the same time, yes, घूमने गए बहुत जगह पे, बाहर गए, दोस्तों के साथ थोड़ा चिल किए. तो it was really good at that point of time. And sleep hours, which used to be 3 or 4 hours before that, now went up to 8, 9, 10 hours. और सबसे अच्छा था कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, लोग जिम करने जा रहे थे. सो ओवरऑल इट वाज लाइक कॉलेज लाइफ ओवर अगेन इफ़ यू आर इन हॉस्टल, वैसा जैसा फीलिंग आया. तो नाउ क्या हुआ था, जो फर्स्ट हाफ था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो मैंने आपको बोला, उधर में जनरली हम लोग वी यूज्ड टू फॉर्म ग्रुप्स विद इन आवर ओन सेक्शंस, बिकॉज वहाँ पे लोगों का ज़्यादा जान पहचान था. नाउ यू सडनली स्टार्टेड मिक्सिंग विद द एंटायर बैच. जो कमिटीज़ था उसमें आप काम कर रहे हो. तो मेरा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कमिटीज़ से. तो मेरा इनिशियली सिलेक्शन नहीं हुआ था कोई भी कमिटीज़ में. तो इफ़ आई हैव टोल्ड दैट इन माई अर्लियर वीडियो, इट स्टैंड्स करेक्टेड.
तो मेरा सिलेक्शन हुआ था सिनेप्स में बिकॉज आई थिंक 2 बंदे शायद ऑप्ट आउट कर गए थे या कुछ तो था, दूसरे कमेटी में चले गए थे, तो आई वॉज द सेकेंड शॉर्ट लिस्टेड गाय। सो तब मेरा इंडक्शन हुआ सिनेप्स में। तो ऑब्वियसली इनिशियल पार्टी था सीनियर्स के साथ। आई वॉज हैंडेड ओवर 2 और 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स जो मैं काम कर रहा था। सो इट वॉज अगेन बैक टू कोडिंग काइंड ऑफ अ डेज फॉर मी। सो आई इज़ हैप्पी कि चलो एक कमेटी का तो पॉइंट मिल गया। थोड़ा लेट आया बट ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है काइंड ऑफ अ सिचुएशन। थोड़ा सभी के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए लग ट्राई कर रहे थे। तो एक और भी अच्छा चीज़ हुआ कि आई कुड सी सम रेस्पेक्ट इन सम पीपल्स आइज कि चलो इस बंदे ने पेप्सी को जैसे कंपनी में अपना इंटर्नशिप सिक्योर किया है। सो दैट हेल्प्ड। इट गिव मी द कॉन्फिडेंस दैट आई बिलोंग हियर। नथिंग टू से दैट आई वॉज अमंग द क्रीम ऑफ द बैच, नो, बट हाँ थोड़ा सा रेस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस लोगों का मिल रहा था, चलो इस बंदे में दम है काइंड ऑफ थिंग। तो इस टाइम पे बहुत सारे कलेश भी हुए थे कॉलेज में। आई सॉर्ट ऑफ ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू whom I thought were good friends. So that's okay, that keeps on happening. But I met my friends who would be there, with whom I still am in very good touch, like 2 or 3 different people. They're from different sections. They were interested in finance. I was interested in marketing and strategy. So अच्छा मिक्स बन गया उन दोनों का। थोड़ा बैकग्राउंड भी डिफरेंट था, एक इकोनॉमिक्स था, एक इंजीनियर था, लेकिन थोड़ा आई थिंक नॉन कोर बैकग्राउंड का था, सॉरी नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का था। सो एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया था उनके साथ। वी यूज टू रीड अ लॉट ऑफ केसेस टुगेदर। थोड़ा एक दो माइनर कॉन्टेस्ट आते थे बिटवीन आईआईएम्स, तो दे यूज्ड टू राइट टू अस कि कुछ पब्लिकेशंस के लिए आ जाओ, कुछ पेपर्स पे कर दो, कुछ ना कुछ तो होता रहता है। सो यूज्ड टू पार्टिसिपेट। आई वन अ फ्यू नेशनल विनिंग पब्लिकेशंस ड्यूरिंग दैट टाइम। बहुत कुछ मैंने किया था उस टाइम पे, तो ये अच्छा था हमारे लिए ना। एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ कि हम लोगों को ना प्लेजरिज्म चेक करना पड़ता था, चाहे मिस्ड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वो कैसे करते थे? वो बेसिकली करते थे थ्रू ग्रामरली का एक हमारे पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था। सो यूज टू यूज़ दैट फॉर दैट। So that was pretty interesting. That was before the ChatGPT days. I hope ChatGPT was there during that point of time. मैं कितना सारा competitions में part ले सकता था. I still wonder. So yeah, that was the honeymoon phase from after summers till your actual summer placements. In the next video, I'm going to talk about part 4, which is my summer internship experience and overall होता क्या है. Stay tuned, and if you have liked the content, do share, like and subscribe. Thank you so much. Mausam Dutta signing off.